اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مدینہ منورہ اور بدر شریف کے درمیان ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جسے بیر روحا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 70 انبیاء علیہ السلام کا گزر ہوا، یعنی انبیاء علیہ السلام ملک شام سے تشریف لاتے، پہلے مدینہ منورہ تشریف لاتے اور پھر بدر شریف کے راستے حج کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو اس جگہ 70 انبیاء کا گزر ہوا اور نبیوں کے سردار صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لائے۔ اس کنویں میں آپ نے اس کنویں کے پانی میں کلی فرمائی اور اس کنویں کو برکت عطا فرمائی۔ آج بھی اس شاک اس کنویں پر آ کر یہاں کا پانی برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس جگہ کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے عربی دوست بھی ہیں، کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میدان اور اس کنویں کو میرے آقا علیہ السلام نے جنتی کنواں اور جنتی میدان فرمایا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے ہمیں بتائی ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، رب عز و جل کی تجلی اس جب پہاڑ پر پڑی تو 3 حصوں میں وہ تقسیم ہوا۔ ایک حصہ جبل احد ہے، ایک حصہ جبل ورقان ہے اور تیسرا پہاڑ یمبو میں ہے جبل ردوا۔ یہ 3 پہاڑ 3 حصوں میں یہ تقسیم ہوا اور جنتی پہاڑ سے کہا گیا ہے۔ آئیے اس پہاڑ کا دیدار بھی کرتے ہیں، کنویں کے بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ بڑی مبارک جگہ ہے، یقیناً نبی پاک علیہ السلام کا یہاں گزر ہوا ہے، انبیاء کا گزر ہوا ہے۔ ہم یہاں دعا کرتے ہیں رب کریم سے، مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، مدینہ منورہ کا سچا اور پیارے آقا علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، رب کریم انہیں بھی یہ مناظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ وائٹ کلر کے پہاڑ کے پیچھے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، جبل احمر لونو، جس کا احمر لال اور براؤنش جو کلر ہے، یہ ہے جبل ورقان کا دیدار کیجئے۔ اللہ اللہ، یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کو جنتی پہاڑ کہا گیا۔ هذا جبل حمد شدید الحلاوہ۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ پہاڑ حمد ہے، اور حمد کہتے ہیں میٹھی چیز کو، یعنی یہ پہاڑ میٹھا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے جس کو پہاڑ کو فرما دیا وہ پہاڑ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہے وہ مبارک کنواں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پر بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے اور اس کی برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روحا کا دیدار آپ کر رہے ہیں، پانی بھی بہت نیچے نظر آ رہا ہے لیکن یہ پانی موجود ہے الحمدللہ۔ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات۔ یہ الشحطہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بچپن گزرا ہے، اور ہم اب اس جگہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ طائف شریف سے تقریباً 60 کلومیٹر کا یہ راستہ مزید آگے ہے، اور آج اس مبارک مقام پر ہماری حاضری ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کچا راستہ ہے، قبرستان ہے، یہ پرانا قبرستان بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک بچپن، یہی وادیاں ہیں جہاں وہ مبارک بچپن گزرا۔
मक्का पाक से ताइफ आए और ताइफ से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे अश-शुहता का एक इलाका है। ये वही इलाका बताया जाता है जब बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकान था। हम यहाँ पहुंचे, अब तो बड़े पक्के रोड बन गए, आसान रास्ता है। मैं सोच रहा था मैं यहाँ आकर हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा और वो खवातीन जो बच्चों को लेकर मक्का पाक से यहाँ आई, उनका सफर कैसे कटा होगा। वो ऊँटनी जो बड़ी निढाल सी थी, कमजोर थी, और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब उस पर सवार हुए तो उस ऊँटनी की स्पीड बढ़ गई, उसके अंदर फिर से ताकत आ गई। मगर ये सफर न जाने कितने दिनों में तय हुआ होगा। एक बड़ा मुश्किल रास्ता नजर आता है। यही वो जगह है, यही वो मकाम है। अब इंशाल्लाह आपको कुछ मनाजिर दिखाएंगे कि जहाँ बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का मुबारक मकान था। यही वो वादियां लगती हैं जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम बचपन में गुजरा करते होंगे। इन पहाड़ों में यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया होगा। इन्हीं जगहों पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे के साथ एक तरह से घुमा करते थे, उनके साथ सफर किया करते थे। करीबी चरागाहें नजर आ रही हैं जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम बकरियों को और इन जानवरों को लेकर जाया करते। और ये भी यहाँ पर वाकयात मिलते हैं कि और लोगों के जानवर इतने फरबा ना होते, मगर जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ जानवर जाते वो वापस आते तो बड़े फरबा होकर आते, बड़े सेहतमंद हो जाते। लोगों ने कहा कि अपने जानवर भी इनके साथ भेजे जाएं, और लोगों ने भी अपने जानवर भेजे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जानवर हुआ करते वो सारे फरबा होकर आते। ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बरकत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के यहाँ बहुत सारे मौजूदात का ज़ुहूर भी हुआ। यही करीब ही वो जगह है जहाँ शक के सदर का वाकया हुआ। जी हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक मलाइका तशरीफ लाए थे आसमान से, और सीना मुबारक को शक किया गया, नूर और अनवार तजल्लियात की बारिश हुई। यकीनन ये बड़ी मुबारक जगह है। ये फजाएं, ये पहाड़, ये तमाम जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम की खुशबुओं से बसी हुई है। रब्बे करीम से दुआ है इन मुबारक वादियों में, मौला करीम इन वादियों के सदके, प्यारे आका के मुबारक बचपन के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे बच्चों को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक बचपन यहाँ गुजरा है। रब्बे करीम हमारे बच्चों को नबी पाक का सच्चा आशिक बनाए। आइए आपको अब वो मनाजिर दिखाते हैं। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये मक़ामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से हैं जो वाबस्ता, है मक़ामात मुक़द्दसा। मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस वक्त आप एक छोटी सी मस्जिद देख रहे हैं। अब यहाँ वो मस्जिद तो कायम नहीं है, मगर बताया जाता है कि बहुत पुरानी ये जगह मस्जिद हुआ करती थी। अब भी कुछ लोग यहाँ नमाज अदा करते हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मकान के बिल्कुल करीब ही ये जगह है जहाँ नमाज की जगह है। इंशाल्लाह हमारी नीयत है थोड़ी देर के बाद मगरिब का वक्त होगा तो हम इंशाल्लाह यहीं बाजमात नमाज भी अदा करेंगे और इस जगह की बरकतें भी हासिल करेंगे। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, वो मुबारक मकाम बचपन से जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का मुबारक बचपन जहाँ गुजरा, वो ऊँटनी का यहाँ पर आना, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रहना, वो झूले का झुलाना, वो नबी पाक का बचपन गुजारना, बचपन में चरागाहों की तरफ जाना, शक के सदर का हो जाना, बहुत सारे मौजज़ात का ज़ुहूर होना, इस पूरे गाँव के लोगों का नबी पाक से प्यार हो जाना, बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का प्यारे आका की जुदाई का बर्दाश्त ना करना। लेकिन ये सारी वही वादियाँ हैं जहाँ ये वक्त गुजरा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम कई माह इसी गांव में रहे और बताया जाता है 2 मकानात की अब कुछ निशानियां ही बाकी हैं। या तो ये मकान बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का था, या यहाँ पर एक और बाकियात सी मौजूद है, ये मकान बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का था। काश ये मकान वैसे ही रहने दिया जाता, लोग आते, ज़ियारत करते, बरकतें हासिल करते, मगर इस मकान को शहीद कर दिया गया। अब यहाँ इसकी कुछ बाकियात ही मौजूद हैं। आप फिर भी इन फ़ज़ाओं का, इस जगह का दीदार कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह आपको इस वाक़े के बारे में कुछ तफसील बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
किस तरह यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, बनी साद ये वो इलाका है, ये वो गांव है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक बचपन गुजरा। बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ही का बयान है, मक्का मुकर्रमा के लोगों का ये अंदाज होता कि वो अपने बच्चों को दूर दराज के इलाकों में बचपन ही में भेज दिया करते ताकि बच्चे इस पुरफज़ा मकाम में सेहतमंद भी हों और फसी अरबी भी सीख लें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन में अबू लहब की लौंडी सुवैबा का दूध भी पिया, फिर अपनी वालिदा बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध भी नोश फरमाते रहे और उसके बाद ये सआदत बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई 2 साल आपने इन्हीं गलियों में इसी इलाके में गुजारे। बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं मक्का पाक गई तो फ़क्र फाका का आलम था, मेरे पास खुद भी इतना दूध ना था कि मैं अपने बच्चे को सैराब कर सकती। एक बेटा जो मेरा था वो खुद भी भूख से बिलक 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 कर रोता था। मेरा जो जानवर खच्चर था वो भी बड़ा लागर था जिसे वे लेकर मक्का मुकर्रमा तक पहुंची। रास्ते में काफिले वालों से पीछे रह जाती, काफिले वाले मेरी वजह से परेशान होते क्योंकि मेरा जानवर बहुत स्लो रफ्तार में, बड़ी धीमी रफ्तार में चला करता। मक्का पाक पहुंची और लोगों को तो बच्चे मिल गए, लेकिन चूंकि मेरे पास अपना दूध भी कम था, खुद भी फ़क्र फाका का शिकार थी, मुझे किसी ने अपना बच्चा ना दिया। और एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूंकि वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था, हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल फरमा चुके थे, तो लोग किसी यतीम बच्चे को लेने के लिए तैयार ना थे कि उस बच्चे को लेकर आएंगे और जब पाल पोस कर वापस करेंगे तो कोई बड़ा इनाम ना मिलेगा। इधर बीबी हलीमा सादिया को कोई बच्चा ना देता, उधर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी औरत ने इस उम्मीद पर ना लिया कि यतीम बच्चे को लेकर जाएंगे तो क्या इनाम मिलेगा। मगर किस्मत का सितारा चमकना हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुकद्दर में था। उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सोच कर ले लिया कि खाली हाथ जाना तो ठीक नहीं, चलो कोई एक बच्चा ही साथ लेकर जाते हैं। मगर अब हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जैसे ही मैं घर लेकर आती हूँ, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने क़याम गाह पर लेकर आती हूँ, तो वो पस्तान जो मेरे बच्चे को भी दूध पूरा ना करते थे, इस कदर भर गए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दूध नोश फरमाया और आपके जो बेटे थे दमरा, वो भी सैर होकर उन्होंने दूध पिया। कहती है, जब वापसी का सफर हुआ, वही खच्चर जो सबसे पीछे रह जाता था अब वो सबसे आगे आगे दौड़ रहा है। काफिले वाले कहते, हलीमा क्या तुमने नया खच्चर खरीद लिया है? और मैं बताती, नहीं, ये वही सवारी है। हम अभी हैरान ही थे जब बनी साद के गांव में पहुंचते हैं, मेरी बकरियां, मेरे वो जानवर जो सूखे थन हो चुके थे, सारे के सब थन भर गए। हम सब घर वालों ने दूध पिया और फरबा और सुकून के साथ आराम किया। बहरहाल पूरे गांव में चर्चा हो चुका था कि हलीमा सादिया किसी बड़े ही मुकद्दर वाले बच्चे को लेकर आई हैं। फरमाती हैं, मेरे जानवर जब चरने जाते वो फरबा होकर लौटते, उनके थन दूध से भर जाते। उन्हीं चरागाहों में दूसरे जानवर भी जाते थे, मगर उनको इतनी सेहत ना मिलती। ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार अपने दूध शरीक भाई हजरत दमरा के साथ गए और वहां गए चरागाह की तरफ। थोड़ी देर के बाद हजरत दमरा हाँपते हुए कांपते हुए आते हैं और आकर कहते हैं, अम्मी जान गजब हो गया, जिस बच्चे को हम लेकर अरब की वादियों से मक्का पाक से यहाँ आए हैं, 3 सफेद लिबास वाले लोगों ने उनके पेट को चाक कर दिया है। बीबी हलीमा सादिया अपने मुबारक शौहर के साथ दौड़ी दौड़ी वहां जाती हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन क्या देखते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े सुकून में हैं। पूछा, क्या हुआ बेटा? तो बताते हैं कि 3 सफेद लिबास वाले लोग जिनकी दाढ़ियां भी थीं, वो आए, मेरा शिकम चाक किया, मेरे सीने से कोई चीज निकाली है, वापस शिकम को बंद कर दिया है, मगर मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ ना हुई। बहरहाल बाद में उलमाए किराम ने इसकी बड़ी प्यारी तशरीह भी की। अहादीस से भी ये बात साबित होती है कि ये शक के सदर का मौजज़ा था। मेरे आका के दिल अक़दस पर, कल्बे अक़दस पर नूर की बारिश की गई और ये शक के सदर का वाकया 4 बार पेश आया।
बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही करीब ही वो चरागाह भी मौजूद है, यही करीब ही वो इलाका भी मौजूद है जहाँ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक के सदर किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आदतें इतनी प्यारी कि अभी बचपन ही का आलम है, मगर ईसार का जज्बा ये था कि एक पिस्तान से दूध पीते और दूसरा पिस्तान जो है अपने भाई के लिए छोड़ देते। शुरू ही से ईसार का जज्बा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था। प्यारे आका ने 2 साल की उम्र में वो नशो नुमा पाई और वो जो कहते हैं कि कद काठ निकाला कि 2 साल के ना लगते थे बल्कि और ज्यादा बड़े लगते। बहरहाल 2 साल के बाद ये वक्त होता है कि बच्चा वापस लौटा दिया जाए, मगर बीबी हलीमा सादिया बड़ी गमगीन थी क्योंकि सारे खानदान को नबी पाक से मोहब्बत हो चुकी थी। ऐसा खूबसूरत, ऐसा निराला, ऐसा प्यारा बच्चा और किसको मिला था? ये मुकद्दर बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ही का था। बहरहाल जब मक्का पाक पहुंचे, प्यारे आका को वापस लौटाया, लेकिन दिल गमजदा था। किसी बहाने फिर बीबी हलीमा सादिया सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से गुजारिश करके कुछ दिनों के लिए नबी पाक को यहाँ लेकर आई। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही वो वादियाँ हैं जहाँ हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक बचपन गुजरा। यही वो बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकान हुआ करता, यही वो चरागाह हुआ करती। क्या मंजर होगा, मुझे वो शेर याद आ रहा है, आ इधर रूह की हर तय में समोलू तुझको, ए हवा ए जबल तूने तो सरकार को देखा होगा। रब्बे करीम इन मुबारक वादियों के सदके हम सब की मगफिरत फरमाए, हमें भी इन मुबारक, आप सबको भी इन मुबारक मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम जिस मकाम पर मौजूद हैं, मैं सच बताऊं कि दिल की कैफियत बहुत बदली हुई है। जिस तरह तवील सफ़र के बाद बंदा माँ की गोद में पहुँचता है, उसे एक सुकून मिलता है। आज हम भी एक सफ़र करके पहाड़ों पे पैदल चल के एक मकाम पर बैठे हैं, और वो मकाम सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी हुजूर, वो मुबारक हस्ती जिनके वतन में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 9 माह गुजारे, फिर उनकी गोद में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्त गुजारा। बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा वो हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन्होंने मुल्क शाम को मुलाहिज़ा फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के सदके। यहाँ आकर बड़ा दिल अफसुर्दा भी है कि यहाँ इनका मज़ार अबवा शरीफ में है, मगर उस मज़ार की बेहुरमती की गई है, मज़ार शरीफ को बाकायदा ख़त्म कर दिया गया है। आम आदमी यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता, यहाँ आने भी नहीं दिया जाता, मगर हम कोशिश करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोगों ने हमारी रहनुमाई के कदमों में बैठे हैं। मालिक करीम उनके मज़ार पर अनवार पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। हम गुनाहगारों की इस पाक दर पर हाज़िरी को कबूल फरमाए। यकीनन यहाँ आना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ज़ाहिर है कि अपनी माँ से कौन प्यार नहीं करता, और जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा के कदमों में हम आए हैं, इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा हासिल हो जाए, अम्मी हुजूर हमसे राज़ी हो जाएँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमा दें, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सबको अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमा लें। हम यहाँ ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के सदके हमारी जितने नाजरीन हैं, जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं, जिन की वालिदा हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए, उनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। यहाँ वो मंज़र याद आ रहा है कि 6 साल की उम्र थी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इस वक्त हम बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुँचे हैं, वो वक्त कैसा होगा जब मदीना तैयबा से मक्का पाक का ये सफ़र जारी था, और दौरान सफ़र बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई। उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा साथ थी, और मेरे आका जिनकी उम्र मुबारक तकरीबन 6 साल थी, बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का इस बयाबान में इंतकाल हुआ। यही तदफीन हुई। एक नन्हे से बच्चे ने अपनी माँ को दुनिया से जाता हुआ देखा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन से ही बड़े सदमे उठाए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं कि जो आज बेकरारों को करार देते हैं, बेचैनों को चैन देते हैं, गमज़दों को गम दूर किया करते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन में अपनी वालिदा
کو دنیا سے جاتا دیکھا. ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو والد صاحب بھی تشریف لے جا چکے تھے, مگر پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عزم و حوصلہ امت کے والی ہیں, آج بھی حوصلہ دیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہیں, بڑی التجائیں ہیں, دل میں بڑی تمنائیں ہیں, دل کی کیفیت عجیب ہے. ہم کافی دیر سے یہاں ہیں مگر سچ بتائیں کہ اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور کہتے ہیں نا وہ تھپک کر ماں جس طرح بچے کو سلاتی ہے اس طرح کی ہماری بھی اس وقت کیفیت ہو رہی ہے. جی چاہ رہا ہے یہیں لیٹ جائیں, یہیں بیٹھ جائیں. شفیق ماں ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. ہمیں امید ہے ضرور ہماری جھولیاں بھری جائیں گی, ہم پر ضرور کرم ہوگا. ہمیں بلایا انہوں نے تو خالی ہاتھ تو ماں نہیں لوٹاتی, ماں تو اپنے بچوں پر شفیق ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. یاد رہے کہ یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں بھی اور کئی جگہ پر علماء کرام نے یہ بحث کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جنتی ہیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ میں پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوا ہوں. اور ویسے بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس پیٹ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہوں اس کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے کہ معاذ اللہ وہ ایمان والے نہ تھے. ارے جس کے صدقے سے ساری دنیا کو ایمان ملا, جن کے صدقے سے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, ان کے والدین کریمین کے بارے میں کیسے کوئی برا سوچ سکتا ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں کبھی بھی ایسا گمان بھی دل میں نہیں لانا چاہیے. یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے, چند دن رہے, آتا ہے اس بارے میں کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی. تو سوچنے کی بات ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہیں وہ جنت میں جائے, جس بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا رہیں وہ کیسے جنت میں نہ جائیں, بلکہ ان کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. آئیے, مناظر دیکھنے والے تو نہیں, اندھیرا بھی ہے, ہم نے کچھ لائٹ وغیرہ جلا کر ریکارڈنگ کی کوشش کی ہے, شاید ریکارڈنگ بھی اتنی پراپر نہ ہو, لیکن دل کی جو کیفیات ہیں امید ہے آپ تک پہنچ رہی ہوں گی. کچھ مناظر دیکھیں, اس مقام کو کم از کم آپ دیکھ لیں. قبر شریف تو نظر نہیں آتی, پتھر یہاں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں بتانے والوں نے بتایا اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں. تو آپ بھی یہ مناظر دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والوں سے ہے جو